Assalamu alaikum dear student. This is our second lecture. Before starting this lecture, I will advise you the following recommended books for computer introductions and computer basics. The first one book is the Computer Fundamentals by P.K. Sinha. Its publisher is BPP Publishers and you can use 4th edition of this book. The second book that will help you is Computer Today and Tomorrow Comprehensive by Dr. D. Morley and Charles S. Parker. You can use 14th edition of this book and hopefully this will be beneficial for you to get the initial basic knowledge about the computers. Studied about basics of introduction to computers and basic organization of computer. That was the two chapters that we have studied last week, and now we are going to learn about some input output devices. Our learning objectives in this chapter is input output devices. Input output is abbreviated as IO. I stands for input and O stands for output. Commonly used input devices, commonly used output devices, other concepts related to the IO devices. So first of all, we will see input output devices, that is IO devices. What are the IO devices? Basically, IO devices provides a means of communication between the computer system and the outer world. IO devices are also known as peripheral devices. Why? Because those devices which looks around storage unit and central processing units are known as peripheral devices. So according to this definition, IO devices are also known as peripheral devices. Input output devices are used to enter data from outside world into the primary storage. Because input devices and output devices, both devices are the means of communication between outer world and computer. Similarly, output devices supplies result of processing from primary storage to user, that is outer world. So here it is very clear that input output devices are means of communication between computer system and the outer world, and input output devices are also known as peripheral devices because input and output devices, both devices looks around the CPU and memory unit. Here, this diagram shows you the role of input output devices. Here, input devices, the box labeled as input device receives data or instructions from outer world, and the box labeled as output devices deliver the information or process data to the outer world. Both input device and both output device looks or seems around central processing unit and memory unit. Basically, if we go to the basic organization of computer as we have studied in chapter 2, both CPU and memory units in that diagram was split as two parts, where both are if we split this box CPU and memory, and then we will see that one box will be CPU and the other will be memory, and both input device and output device communicate with the storage unit, and storage unit communicate with the central processing unit. Here you will see that input device receives input from the outer world delivered to the CPU and memory, but before delivering that information to CPU and memory, it converts the data into computer acceptable form, that is binary form, that is coded form. We also can say it
coded form in internal form, and before delivering information or process data to outer world, output device converts that data into human acceptable form so that human can understand that information. Commonly used input output devices. Here some devices are pointed out as commonly used input output devices. We will also study their types. The first one is keyboard device. The second one is point and draw devices. Third one is data scanning device, digitizers, electronic cards based devices, VN based devices. Keyboard device allow data entry into a computer system by pressing a set of keys neatly mounted on the keyboard connected to a computer system. आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड के ऊपर अगर आप देखें उस बेस के ऊपर कुछ कीज़ लगी होती हैं, बटन्स नुमा कीज़ लगी होती हैं जो कि प्रॉपरली लेबल्ड होती हैं, जिनको प्रेस करने से आप कंप्यूटर को कुछ डाटा इनपुट करते हैं। ये कीज़ आपके पास न्यूमेरिक फॉर्म में भी होती हैं, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में भी होती हैं, फंक्शन फॉर्म में भी होती हैं, और हर की प्रॉपर तरीके से लेबल्ड होती है। मींस कि अगर आपने ए इनपुट करना है तो आप ए वाली की प्रेस करेंगे जिसके ऊपर ए लेबल हुआ होगा, तो आपको वो डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में कंप्यूटर को इनपुट हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसको आप क्वार्टे कीबोर्ड कहते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है और कॉमनली यूज़ होता है, उसमें 101 कीज़ होती हैं। अक्सर ये पूछ लिया जाता है कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में, सो यू शुड नो एंड कीप इट in your mind that standard keyboard named as Quatrain keyboard consists of 101 keys. This is the layout of keys on a Quatrain keyboard. Here you will see that this keyboard consists of some numeric keys, some alphabetic keys, some functional keys. This is the Quatrain keyboard and it consists of 101 keys. Point and draw devices used to rapidly point to and select a graphic icon or menu item from multiple options displayed on the graphical user interface of a screen. Used to create graphic elements on the screen such as lines, curves and freehand shapes. Some commonly used point and draw devices are mouse, trackball, joystick, light pen and touch screen. आपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को अंडरस्टैंड किया होगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपके पास स्क्रीन पर सामने कुछ आइकन्स डिस्प्ले हो रहे होते हैं। आप उन आइकन्स को पॉइंट करते हैं, उन पर क्लिक करते हैं, उनको ड्रॉ करते हैं, तो आपके सामने वो ऑप्शन एनेबल हो जाती है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में वो यही कहना चाह रहा है कि ये जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस हैं ये यूज़ होते हैं किस लिए? सिलेक्ट करने के लिए ग्राफिक आइकन को जो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। मल्टीपल ऑप्शंस वहाँ पर आ रही होती हैं, जिसको आपने सेलेक्ट करना है उस आइकन को आप सेलेक्ट करते हैं, जो कि आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है। इन डिवाइसेस की मदद से आप स्क्रीन के ऊपर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री हैंड शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस हैं इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास माउस है, और इस तरह बहुत से पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनमें माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है। ये सारे के सारे आपके पास बुनियादी तौर पर पॉइंट एंड ड्रॉ के पर्पज़ के लिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। सो ये सारे के सारे पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस कहलाते हैं। हम पहली एग्जांपल की तरफ जाएं तो माउस आपके सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ या वर्क स्टेशंस के साथ। इस माउस को देखें तो इस बेस के ऊपर आपके सामने दो बटन आपको नज़र आएंगे, जिसमें से एक लेफ़्ट क्लिक कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है, एक राइट क्लिक का बटन होता है जो कि कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है।
ये माउस आपके साथ आपको अक्सर नज़र आएगा कि इसके साथ कुछ एक तार लगी होती है जो कि आपके सिस्टम यूनिट के साथ अटैच होती है। बाद माउस ऐसे भी होते हैं जिनके साथ तार नहीं होती, वायरलेस माउस होते हैं। इस माउस को अगर आप देखेंगे, इसको पलटें तो आपको इसके नीचे एक बॉल नज़र आएगी, जो बॉल अंदर मुख्तलिफ गरारियों के साथ अटैच होती है। जब आप इस माउस को फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो बॉल अपनी पोजीशन मूव करती है और अंदर गरारियों को मूव करती है, जिसकी वजह से आपको सामने स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता हुआ नज़र आता है। बाज़ माउस ऐसे भी होते हैं जिसको अगर आप उल्टा कर देखें तो उनके नीचे आपको रेड कलर की लाइट नज़र आएगी। ऐसे माउस को हम लेज़र माउस कहते हैं। ये माउस जब फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तो लेज़र लाइट अपनी पोजीशन चेंज करने की वजह से माउस को इंडिकेट करती है और आप स्क्रीन पर आपके सामने माउस का पॉइंटर अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो कॉमनली यूज़ होता है ये माउस पर्सनल कंप्यूटर में और वर्क स्टेशन में। इस माउस के बारे में अगर आप मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो आप पीके सिन्हा की बुक का चैप्टर नंबर 9 में देख सकते हैं। ट्रैक बॉल कॉमनली यूज़ होता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। लैपटॉप कंप्यूटर्स के साथ, नोटबुक कंप्यूटर्स के साथ जो पुराने ज़माने में आते थे, आपने देखे हों। तो IBM के कंप्यूटर में जहाँ पर आप फिंगर्स के साथ टच पैड के ऊपर अपनी उंगली को मूव करते हैं और सामने कर्सर मूव होता नज़र आता है, तो पहले यहाँ पर ट्रैक बॉल होता था। इस ट्रैक बॉल में अगर आपके सामने स्क्रीन पर देखें तो बिल्कुल माउस की तरह 2 बटन लगे हुए हैं। एक बटन लेफ़्ट क्लिक का काम करता है, एक बटन राइट क्लिक के फंक्शंस परफॉर्म करता है। उसी तरह कॉर्ड लगी होती है जो सिस्टम यूनिट के साथ होती है। जो बॉल माउस में नीचे होती थी इस सरफेस की और फ्लैट सरफेस के ऊपर माउस को मूव करने से मूव करती थी और उसके अंदर गरारियाँ मूव करती थी, अब ये बॉल ऊपर लगी हुई है माउस के और इसको आप फिंगर के साथ मूव करते हैं। इस ट्रैक बॉल के अंदर इस बॉल के साथ लगी हुई गरारियाँ मूव होती हैं और सामने पॉइंटर आपको स्क्रीन पर मूव करता हुआ नज़र आता है। लैपटॉप कंप्यूटर्स में या नोटबुक कंप्यूटर्स में टच पैड की जगह पर ये छोटा सा माउस लगा होता है जिसके साथ 2 ट्रैक बॉल लगा होता है, जिसके साथ 2 बटन्स होते हैं लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, और एक रेड कलर की बॉल होती है जिसको आप फिंगर से मूव करते हैं तो ये स्क्रीन पर सामने पॉइंटर को मूव करती है। माउस और ट्रैक बॉल में एक डिफरेंस ये है कि माउस को मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आपको स्पेस चाहिए होती है, जबकि ट्रैक बॉल में ट्रैक बॉल अपनी जगह पर स्टेशनरी रहती है और आप अपनी फिंगर से बॉल को मूव करते हुए स्क्रीन पर सामने पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। जॉयस्टिक कॉमनली यूज़ होती है वीडियो गेम्स के लिए, फ्लाइट सिमुलेटर के लिए, ट्रेनिंग सिमुलेटर के लिए एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स। अगर आप इसकी शक्ल देखें तो ये आपको ऐसे ही नज़र आएगा जैसे एक बेस है, उस बेस के ऊपर एक सॉकेट है और सॉकेट में एक स्टिक सी लगी हुई है, जो स्टिक 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। टॉप के ऊपर इसके एक बटन प्रेस बना होता है, बिल्कुल उसी तरह जो माउस का राइट क्लिक का बटन परफॉर्म करता है काम, इसके भी कुछ फंक्शंस हैं जो ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। दूसरा हिस्सा इसका स्टिक है और तीसरा इसका वो बॉल है जो कि सॉकेट के अंदर अटैच है। कॉमनली यूज़ होती है ये वीडियो गेम्स के लिए, फ्लाइट सिमुलेटर्स के लिए, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स के लिए एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स। इस जॉयस्टिक पर आपको लाइट इंडिकेटर नज़र आएगा। जब इसकी केबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच होगी तो ये लाइट इंडिकेटर इस चीज़ को शो करेगा कि आपका जॉयस्टिक अटैच है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। इलेक्ट्रॉनिक पेन बेस्ड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस used to directly point with it on the screen to select menu item or icons or directly draw graphics on the screen. Can write with its own special pad for direct input of written information to the system. Pressure on tip of a side button is used to cause same action as right click button of a mouse. पेन बेस्ड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक पेन। इसकी मदद से आप
इसके पैड के ऊपर, जो कि एक स्पेशल पैड होता है, उस पर कुछ भी आप जो लिखेंगे वो डायरेक्टली कंप्यूटर को इनपुट के तौर पर मिलेगा। इस पेन की जो टिप है बिल्कुल वही एक्शन परफॉर्म करती है उसको प्रेस करने से जो कि माउस का राइट क्लिक का बटन परफॉर्म करता। टच स्क्रीन, आप लोग इस बात से बखूबी अंदाज़ा वाकिफ़ होंगे कि टच स्क्रीन क्या होती है, बिकॉज यू नो एवरीवन अमंग यू हैज़ एन एंड्रॉयड मोबाइल, जिसको इस्तेमाल करने के लिए वो अपनी फिंगर का इस्तेमाल करता है और उसकी स्क्रीन को टच करते हुए करता है। इन एंड्रॉयड मोबाइल्स के ऊपर ये जो स्क्रीन बनी हुई है ये टच स्क्रीन है बुनियादी तौर पर। इस स्क्रीन को इस्तेमाल करने के लिए एक कॉमन यूज़र को किसी किस्म की किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये नेचर के बिल्कुल करीब है। इंसान जिस चीज़ को एक्सेस करना चाहता है उस तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये जो टच स्क्रीन है मोस्ट सिंपल है, इंट्यूटिव है, ईजीएस्ट वे है to learn among all input devices. Enable user to choose from available options by simply touching with their finger the desired icon or menu item displayed on the screen. Enable user to choose from available options by simply touching with their finger the desired icon or menu item displayed on the screen. Most preferred human computer interface used in information cosics. इंफॉर्मेशन कॉसिक्स ऐसे जगहों को कहते हैं जहाँ पर इंसानों को गाइड करने के लिए कोई अटेंडेंट नहीं होता, बल्कि मशीन सामने है। मशीन आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती है और आप उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे एटीएम मशीन्स में आपने देखा होगा कि एटीएम मशीन्स में एक कॉमन यूज़र जाता है और जो इन्फॉर्मेशन उसके पास सामने नज़र आ रही होती है उसको फॉलो करता हुआ वो अपना फंड्स ट्रांसफ़र करता है, कैश ड्रॉ करता है, बैलेंस मालूम करता है और इस किस्म की कैश से रिलेटेड मुख्तलिफ बैंकिंग से रिलेटेड एक्टिविटी बआसानी बगैर किसी अटेंडेंट के खुद परफॉर्म कर लेता। तो बहुत से जो आपके पास एटीएम मशीन्स हैं या इंफॉर्मेशन कॉसिक्स हैं, जैसे नादरा का इंफॉर्मेशन कॉसिक्स है बिल जमा कराने के लिए, वहाँ पर ये प्रेफर किया जाता है कि वहाँ पर टच स्क्रीन एज एन इनपुट डिवाइस यूज़ की जाए। सो मोस्ट प्रेफर्ड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस यूज्ड इन इंफॉर्मेशन कॉसिक्स, that is unattended interactive information systems such as ATM machines, automatic teller machine. Data scanning devices. Input devices that enable direct data entry into a computer system from source document. Eliminate the need to key in text data into the computer. Due to reduced human efforts in data entry, they improve data accuracy and also increase the timelines of the information processed. Demands high quality of input document. Some data scanning devices are also capable of recognizing marks and characters. Form design and ink specification usually becomes more critical for accuracy. देखिए, जब ये डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस हैं ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट डाटा एंट्री करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से कंप्यूटर में। जो आप डायरेक्ट इनपुट देते हैं उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं बनिस्बत के आप कीबोर्ड के ज़रिए अगर कोई डाटा टाइप करेंगे तो देयर आर चांसेस, इक्वल चांसेस फॉर एनी एरर और एनी मिस्टेक। बट जब आप किसी सोर्स डॉक्यूमेंट्स को स्कैनिंग डिवाइस के ऊपर रखें और वो सोर्स डॉक्यूमेंट से स्कैनिंग डिवाइस तमाम इंफॉर्मेशन खुद रीड करके कंप्यूटर को कुछ दे, देन देयर इज़ ए लिटिल चांस और वी कैन से देयर इज़ नो चांस फॉर एनी मिस्टेक। सो एक तो इसका ये फ़ायदा है इन डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस का। दूसरा, इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है कि आप की के ज़रिए टेक्स्ट डाटा को एंटर कर सकें। इस चीज़ को एलिमिनेट किया है डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस ने। ड्यू टू ह्यूमन एफर्ट्स भी रिड्यूस हो गई हैं डाटा एंट्री के लिए। एक तो एक्यूरेसी बढ़ गई है इससे, दूसरी कम वक्त के अंदर आप डायरेक्टली बहुत सा डाटा कंप्यूटर को इनपुट कर सकते हैं प्रोसेस करने के लिए।
जो सिर्फ एक चीज़ इसमें रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट है it should be high quality input document, so demands high quality of input document. बहुत से स्कैनिंग डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि मार्क्स को और कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करने की सहूलत रखती हैं या सलाहियत रखती हैं। मार्क्स को कैरेक्टर रिकग्नाइज करने का मतलब ये है, आपने अगर कभी NTS का टेस्ट दिया हो तो उधर आप सर्कल्स को फिल करते हैं, ये फील्ड सर्कल्स मार्क्स कहलाते हैं। तो यही वजह है कि जब इन टेस्ट को रखा जाता है आपके आंसर शीट को इन स्कैनर्स के ऊपर, तो विद इन नो टाइम्स वो आपके आंसर्स को रीड कर लेते हैं और एक्चुअल आंसर्स के साथ मैच करके आपकी उस शीट को चेक कर लेते हैं। कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होती हैं जो किसी ख़ास स्पेशल इंक की मदद से लिखे होते हैं, तो इस इंक को रीड करने के लिए कुछ स्पेशल स्कैनिंग डिवाइसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं कि वो इन कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इमेज स्कैनर की बात करेंगे। इनपुट डिवाइस है दैट ट्रांसलेट पेपर डॉक्यूमेंट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट फॉर स्टोरेज इन ए कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ scanned image is its bitmap representation. Stored image can be altered or manipulated with an image processing software. इमेज स्कैनर्स आपने अक्सर देखे होंगे ऑफिस में पड़े हुए, जो कि आपको इस तरह का नज़र आएगा। दो किस्म की क्वालिटी में ये अवेलेबल होती हैं, एक कहलाता है फ्लैट बेड स्कैनर और एक कहलाता है हैंड हैंडल स्कैनर। क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है जो पेपर डॉक्यूमेंट है, इसको कंप्यूटर को जब देता है तो ट्रांसलेट करके देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, दैट इज 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर को इनपुट कर देता है वो डॉक्यूमेंट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है उस डॉक्यूमेंट का, स्कैन डॉक्यूमेंट का, उसको हम बिट मैप इमेज भी कहते हैं। और ये जो आप इसके ज़रिए जो आप डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं, आप चाहें तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं और किसी फर्दर उससे कुछ रिजल्ट्स हासिल करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस भी कर सकते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइस, इनको हम OCRs भी कहते हैं। स्कैनर्स इक्विप्ड विद कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स, ये वो स्कैनर्स होते हैं जिनमें कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये कैरेक्टर रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स के साथ इक्विप्ड होते हैं और ये जो बिटमैप इमेजेस जो क्रिएट होते हैं उनको उनके इक्विवेलेंट ASCII कोड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ASCII कोड्स में कन्वर्ट करने का मकसद क्या होता है कि ये ASCII कोड में जो इमेज कन्वर्ट किया जाता है वो लेस स्पेस कंज्यूम करता है मेमोरी के अंदर एज कम्पेयर टू बिटमैप इमेज, so enables word processing of input text and also require less storage for storing the document as text rather than an image. इन स्कैनर्स के लिए जो सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं that are extremely complex because जो आपके पास ASCII कोड्स होते हैं उनमें बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर ऑफ फाउंड्स होते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइप फेस होते हैं। दो किस्म के स्टैंडर्ड फाउंड्स होते हैं OCR के, एक को आप कहते हैं OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कहलाता है OCR A, और दूसरे को हम कहते हैं OCR B, दैट इज यूरोपियन स्टैंडर्ड। ऑप्टिकल मार्क रीडर scanner enable of recognizing a pre-specified type of mark by pencil or pen. ये वो स्कैनर है जो कि पहले से स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाय पेंसिल और पेन को स्कैन करने की सलाहियत रखते हैं। वेरी यूजफुल फॉर ग्रेडिंग टेस्ट विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और फॉर एनी इनपुट डाटा दैट इज ऑफ ए चॉइस और सिलेक्शन नेचर। Techniques used for recognition of marks involve focusing a light on the page being scanned and detecting the reflected light pattern from the marks. जैसे कि हमने कहा था कि आपने NTS के अगर कभी टेस्ट दिए हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके पास जो शीट आती है उस पर पहले से आपको बता दिया जाता है कि आपने इधर आंसर शीट पर सर्कल्स को फिल करना है, अनसर्कल करना है या क्या करना है। आप अपने आंसर्स को लेट्स सपोज फिल करते हैं, तो ये जो आपने सर्कल को फिल किया है दैट इज़ ए मार्क,
सो ग्रेडिंग टेस्ट के अंदर जो ग्रेडिंग के टेस्ट होते हैं जिसमें आपके पास MCQs होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस नेचर के क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर आप ये मार्क्स की मदद से अपनी ऑप्शन को जाहिर करते हैं और ये स्कैनर्स इन ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं, रीड करके एक्चुअल को आंसर्स के साथ मैच करते हैं और आपके टेस्ट की ग्रेडिंग कर देते हैं। अब जो टेक्निक इन्वॉल्व है आपके टेस्ट में से आंसर्स को रीड करने की, वो टेक्निक ये है कि ये स्कैनर जब लाइट पेज पर भेजता है तो पेज से लाइट के रिफ्लेक्ट होती है, वो पॉइंट्स या वो जगह जिसको आपने फिल किया होता है वो मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्ब करती है और रिफ्लेक्शन वहाँ से मिनिमम होती है, और पेज पर वो जगह जहाँ जिनको आपने फिल नहीं किया होता वहाँ से मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होती है और मिनिमम लाइट अब्जॉर्ब होती है। सो डिफरेंट रिफ्लेक्शन पैटर्न्स होते हैं उस पेज पर से लाइट पर रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो रिफ्लेक्शन पैटर्न्स की मदद से जो सॉफ्टवेयर इन स्कैनर्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि किस जगह से लाइट कम रिफ्लेक्ट हो रही है, सो किस जगह को आपने मार्क किया हुआ है और आपकी आंसर ऑप्शन क्या है। ये जैसे आपके सामने एक शीट बनी हुई है, यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 के आगे डी को फिल किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के आगे सी को फिल किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे ए को फिल किया हुआ है। जब आप इसको स्कैनर के ऊपर रखेंगे, OMR स्कैनर के ऊपर रखेंगे, तो लाइट इस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, वो सर्कल्स जो डार्क आपने किए हुए हैं, फिल किए हुए हैं, वहाँ से मिनिमम रिफ्लेक्शन होगी और जो अनफिल्ड है वहाँ से मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होंगे। सो इस तरीके से बहुत आसानी से जो सॉफ्टवेयर इसको यूज़ कर रहा है OMR स्कैनर, वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि आपने कौन सी ऑप्शन को चूज़ किया हो। बारकोड रीडर, बारकोड को हम UPC कोड भी कहते हैं, दैट इज़ यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अक्सर हम लोग शॉपिंग मार्ट्स में या बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर्स में जाते हैं, तो जब हम वहाँ से ब्रांडेड या लोकल चीज़ें परचेज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि उन सब चीज़ों के पास के पीछे कुछ ना कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं या वर्टिकल बार्स होती हैं जिनकी मुख्तलिफ विड्थ भी हो सकती है, जिनके दरमियान स्पेस भी किसी के दरमियान कम होती है, किसी के दरमियान ज़्यादा होती है। ये जो बार्स होती हैं, दीज आर नोन एज बारकोड। इनके पीछे हिडन इंफॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट की, दैट इज़ उस प्रोडक्ट का नेम, उस प्रोडक्ट का लॉट नंबर, उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी, उस प्रोडक्ट का बैच नंबर, उस प्रोडक्ट की प्राइस एंड सो ऑन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट दैट बारकोड कंटेन्स। सो यही वजह है कि इस बारकोड को जब आप शॉपिंग मार्ट में अपनी ग्रॉसरी का बिल बनवाने के लिए आते हैं तो प्रोडक्ट उठा के जो कैशियर है वो एक डिवाइस, एक स्कैनर के पास लेकर जाता है, जो कि जिसमें से रेड लाइट आपको लेज़र लाइट एमिट होती हुई नज़र आती है, और जब वो इसके पास उस बारकोड को लेके जाता है वो इसमें से उस हिडन इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद वो आपके बिल में आ जाती है कि इसका नेम क्या है, इसकी प्राइस क्या है एंड सो ऑन। और इस तरह विद इन नो टाइम स्कैन करते हुए जितनी भी आपने प्रोडक्ट्स ली होती हैं उन सब का बिल वो जनरेट कर लेता है। So scanner used for reading barcode data are known as barcode reader. Barcode represents alphanumeric data by a combination of adjacent lines by varying their width and spacing between them. Scanner uses laser beam to stroke across pattern of the barcode. Different patterns of bars reflect the beam in different ways sensed by light sensitive detector. Universal product code is most widely known बारकोडिंग सिस्टम। ये आपके सामने बारकोड की एग्जांपल है। इस तरह की जो आपको वर्टिकल लाइंस प्रोडक्ट के ऊपर नज़र आ रही होती हैं, दीज आर नोन एज बारकोड एंड दे कंटेन्स हिडन एंड दे कंटेन्स इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्रोडक्ट। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, आपने देखा होगा कि बैंकों में जब आप चाहते हैं, आप उनको चेक देते हैं, उस चेक के अगेंस्ट वो आपको अमाउंट दे देते हैं, और बाद चेक ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे बैंकों से ट्रांजैक्शन होकर आपके अकाउंटों में आनी होती है। तो एट द डे एंड बैंकों के पास बहुत से चेक इकट्ठे हो जाते हैं और उनको उसकी समरी बनानी पड़ती है।
अब अगर वो मैनुअल हर चेक की डिटेल देने लगे तो फिर देयर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दैट बैंकर कि वो अगले दिन सुबह तक भी उस सारी डिटेल को कंप्लीट कर सके। इस मकसद के लिए स्कैनर यूज़ किए जाते हैं। ये जो स्कैनर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन स्कैनर कहलाते हैं। ये डिवाइसेस बुनियादी तौर पर मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए कैरेक्टर्स को रीड कर लेती हैं। मैग्नेटिक इंक ऐसी इंक होती है जो कि किसी ऑक्सीडाइज मटेरियल्स पर मुश्तमिल होती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की तरह के मटेरियल्स पर। सो इन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स बुनियादी तौर पर 14 कैरेक्टर्स होते हैं, लिमिटेड कैरेक्टर्स होती हैं और सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज़ हो सकते हैं। इन्हीं बातों को मैंने चंद एक पॉइंट्स में आपके सामने एक्सप्लेन किया कि MICR इज़ यूज्ड फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स। It contains bank identification code, account number and check number are pre-printed using characters from a special character set on all checks. Special ink is used that contains magnetized particle of iron oxide. MICR reader sorter reads data on checks and sorts them for distribution to other banks or for further processing. ये आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं कैरेक्टर्स 0 से लेकर 9 तक 10 कैरेक्टर्स ये शामिल होते हैं। उसके नीचे लाइंस की सूरत में आपको 4 कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो ये टोटल 14 कैरेक्टर्स बनते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल 0 to 9 and 4 स्पेशल कैरेक्टर्स। MICR is not adopted by other industries because it supports only 14 symbols. So बैंकिंग इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है और इस तरह के कैरेक्टर्स आपको अपने चेक लीफ के नीचे अक्सर लिखे हुए नज़र आते हैं। डिजिटाइजर्स, इनपुट डिवाइसेस used for converting pictures, maps and drawings into a digital form for storage in computer. क्योंकि जो स्कैनर्स आपके पास होते हैं, आम स्कैनर, इमेज स्कैनर्स, ये बड़े बड़े नक्शाजात वगैरह को, बड़े बड़े डिज़ाइंस वगैरह को, आर्किटेक्ट्स वगैरह को स्कैन करने की सलाहियत नहीं रखते, तो इस मकसद के लिए हम डिजिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो इनपुट डिवाइसेस यूज फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर्स, मैप्स, ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर, commonly used in the area of computer-aided design by architects and engineers to design cars, buildings, medical devices, robots, mechanical parts, etc. Used in the area of geographical information system for digitizing maps available in the paper form. ये आपके पास डिजिटाइजर की एक एग्जांपल है। यहाँ पर आपको डिजिटाइजिंग टेबलेट नज़र आ रहा होगा। इस डिजिटाइजिंग टेबलेट के साथ स्टाइलस जो है वो अटैच होता है, जो कि आपके पास एक टेबल पर रखा होगा। जब आप स्टाइलस पर कोई नक्शा रखते हैं, डिजिटाइजिंग टेबलेट पे कोई नक्शा रखते हैं, तो स्टाइलस उसके ऊपर मूव करने से ये उस नक्शा को रीड कर लेता और कंप्यूटर को बिट मैप फॉर्म में, दैट इज़ 01 की फॉर्म में ट्रांसलेट कर देता। Electronic card readers. So before studying electronic card readers, we should know what are electronic cards. आपने देखा होगा आपके पास जो ATM कार्ड्स हैं प्लास्टिक के कार्ड है, आपके पास जो नादरा का NIC है प्लास्टिक का कार्ड है, आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है प्लास्टिक का कार्ड है। इसी तरह आप अगर किसी मल्टीनेशनल टाइप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके पास जो आपका एम्प्लॉय कार्ड होगा वो भी एक प्लास्टिक का कार्ड होगा। आप जब उस कार्ड को दरवाजे के पास लेकर जाते हैं तो आपके लिए दरवाज़ा खुल जाता है। सो वो कार्ड कोई हिडन इंफॉर्मेशन रखता है कि ये बंदा यहाँ का एम्प्लॉय है, इसका नाम ये है। आप जब कार्ड उस डिवाइस के सामने लेके जाते हैं तो दरवाज़ा हिडन इंफॉर्मेशन को क्रॉस मैच करता है और ओपन कर देता है। बिल्कुल इसी तरह जब ATM कार्ड या आपके नादरा के कार्ड, अगर आपने इनको गौर किया हो तो इनके साथ एक ब्लैक रंग की स्ट्रिप लगी होती है। ये स्ट्रिप हिडन इंफॉर्मेशन रखती है अबाउट दैट कार्ड। जब आप इसको इसके कार्ड रीडर में डालते हैं तो कार्ड रीडर उस स्ट्रिप्स में से हिडन इंफॉर्मेशन को रीड कर लेता। सो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स आर स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स हैविंग एनकोडेड डाटा अप्रोप्रिएट फॉर द एप्लीकेशन फॉर विच दे आर यूज्ड।
Electronic card readers is used to read data encoded on an electronic card and transfer it to the computer for further processing. स्ट्रिप के बिहाइंड ये एनकोडेड डाटा होता है जिसको वो रीड करती है और कंप्यूटर को देती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. Used together as a mean of direct data entry into computer system. Used by banks for use in ATM machines and by organizations for controlling access of employees to physically secured areas. यानी कि जिन एम्प्लॉयज़ के पास उनका एम्प्लॉय कार्ड है और अगर लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय HR डिपार्टमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है और जाना वो चाह रहा है किसी ट्रैफिक के डिपार्टमेंट में या किसी स्टॉक या स्टोर के डिपार्टमेंट में, तो जब वो अपना कार्ड स्टोर के गेट को दिखाएगा या उधर लगे हुए डिवाइस को दिखाएगा तो स्टोर का दरवाज़ा उसके लिए ओपन नहीं होगा क्योंकि वो HR सेक्शन से बिलोंग करता है. वो कार्ड उसका HR सेक्शन के दरवाजे पर जब किसी डिवाइस को दिखाएगा तो उसके लिए वो दरवाज़ा ओपन हो जाएगा. तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टाफ की फ़िज़िकल एक्सेस को कंट्रोल करती हैं, सिक्योर करती हैं कि वो ऐसे एरिया में ना जाएं जहां पर उनको परमिशन नहीं है और अपने एरिया में महदूद रह सकें. स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइसेस. Input devices that allow a person to input data to computer system by speaking to it. अलाउ करती हैं किसी भी शख्स को कि वो कंप्यूटर सिस्टम को कुछ डाटा इनपुट कर सकता है स्पीक करके. Today's speech recognition systems are limited to accepting few words within a relatively small domain and can be used to enter only limited kind and quantities of data. ये जो speech recognition systems हैं, जिस वक्त ये बुक पब्लिश हुई होगी उस वक्त तो लिमिटेड थे, फ्यू वर्ड्स एक्सेप्ट करने की इनमें सलाहियत थी, मगर अब ये जो स्पीच रिकग्निशन सिस्टम हैं काफ़ी एडवांस हो चुके हैं. दो किस्म के स्पीच रिकग्निशन सिस्टम होते हैं, एक को हम कहते हैं सिंगल वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं कंटीन्यूअस स्पीच रिकग्निशन सिस्टम. तो सिंगल वर्ड स्पीच रिकग्निशन सिस्टम कैन रिकग्नाइज ओनली ए सिंगल स्पोकन वर्ड सच एज यस, नो, मूव, स्टॉप एट अ टाइम. Speaker independent systems are mostly of this type. Continuous speech recognition systems can recognize spoken sentences such as move to the next block. Such systems are normally speaker dependent. Uses of that speech recognition system. Number 1, for inputting data to computer system by a person in a situation where his or her hands are busy or his or her eyes must be fixed on a measuring instruments or some other object. ऐसी जगहों पर जहाँ पर कोई शख्स काम कर रहा है जिसके हाथ मसरूफ़ हैं और दूसरी तरफ उसकी आंखें जो हैं किसी और चीज़ को मेजर करने में मसरूफ़ हैं, तो वो अपनी वॉइस की मदद से, अपनी स्पीच की मदद से इंस्ट्रक्शन देता हुआ कोई तीसरा काम परफॉर्म कर सकता है. इसी तरीके से आपने अगर कोई डिक्टेशन देनी है तो आपको किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है या स्टेनोग्राफर की ज़रूरत नहीं है. आप स्पीच करते जाएं और आपका सिस्टम आपकी स्पीच को रिकग्नाइज करता हुआ आपकी डिक्टेशन को राइट करता जाता है. फॉर डाटा इनपुट बाय डिक्टेशन ऑफ लॉन्ग टेक्स्ट और पैसेज फॉर लेटर एडिटिंग एंड रिव्यू. आपने अली बाबा 40 चोर में भी देखा होगा कि अली बाबा स्पीच से आके बोलता है कि खुल जा समसम और दरवाज़ा आपके सामने खुल जाता है. सो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपकी स्पीच को आपने पासवर्ड के तौर पर अपने सिस्टम में ऑथेंटिकेट किया हुआ है तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करके देते हैं या अपने फिंगरप्रिंट देते हैं बायोमेट्रिक्स या अपने आई का रेटिना रीड करवाते हैं, इसी तरह अगर आपकी वॉइस ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हुई पड़ी है तो आपकी वॉइस जब बोलेंगे उसके लिए अपने आवाज़ से तो वो मैच करेगी आपकी ऑथेंटिकेटेड वॉइस से, और अगर ऑथेंटिकेटेड पर्सन होगा तो आपकी वॉइस पासवर्ड का काम, सिक्योरिटी का काम भी कर सकती है. फॉर लिमिटेड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स बाय इंडिविजुअल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, वो लोग जो कि फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ रखते हैं वो भी इन स्पीच रिकग्निशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के इस्तेमाल को आसान बना सकते हैं. विजन इनपुट सिस्टम. कैमरा जिस तरह आपके सामने है, विजन इनपुट सिस्टम है.
कैमरा आपकी जो आउटर एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है और उसको इमेज अपने पास लेकर जाता है या कंप्यूटर को देता है. अलाउ कंप्यूटर टू एक्सेप्ट इनपुट जस्ट बाय सीइंग एन ऑब्जेक्ट. Input data is normally an object's shape and feature in the form of an image. Mainly used today in factories for designing industrial robots that are used for quality control and assembly process. आपने देखा होगा बहुत सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में ये VN इनपुट सिस्टम सेंसर्स की सूरत में लगे हुए होते हैं जो कि असेंबली प्रोसेस के दौरान जो चीज़ें हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं. और अगर कोई चीज़ ऐसी जो कि अनयूजुअल हो या मुख्तलिफ हो फील करें तो फ़ौरन आपको उसकी तरफ मुतवज्जो कर देती हैं अलार्म्स की सूरत में या किसी अलर्ट की सूरत में. तो इससे पहले डियर कि हम कॉमनली यूज़ होने वाले आउटपुट डिवाइसेस की तरफ चलें तो हमारा आज का लेक्चर कॉमनली यूज़ होने वाले इनपुट डिवाइसेस की तरफ उम्मीद है काफ़ी है आप लोगों के लिए. आप इसको पढ़ें, बुक को देखें, अंडरस्टैंड करें. आपके जहन में ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन अराइज होंगे. उन क्वेश्चंस को आप मेरे ईमेल एड्रेस पर मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. इंशाल्लाह आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलेंगे. सो मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, akdas2001@yahoo.com, AQDUS2001@yahoo.com. इंशाल्लाह आइंदा आने वाले लेक्चर में हम कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले आउटपुट डिवाइसेस को देखेंगे और साथ ही साथ सेकेंडरी स्टोरेज के चैप्टर की तरफ भी जाएंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.